بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی، لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ہے وہ اردو سے عربی والی مشق بھی کر لی تھی، ٹھیک ہے نا. عربی کے معلم کا پہلا حصہ اور صفحہ نمبر رقم الصحیفہ 26 ہے، اور اس کے اندر اب ہم کرنے جا رہے ہیں سوالات نمبر 1، یعنی یہاں سے حل کریں، سوالات جوابات کو حل کریں. کلمے کی تعریف کرو. ہاں بھائی کاشف بھائی آپ بتائیں کلمے کی کیا تعریف ہے؟ کلیمہ، با معنی لفظ کو کلیمہ کہتے ہیں، یہ جواب ہے. اچھا بھائی، اس کے بعد کلیمے کی 3 قسمیں ہیں. جو ہمارے ساتھ طالبہ ہیں عظما، آپ بتائیے کلیمے کی 3 قسمیں کون سی ہیں، ان کے نام بتا دیں. انہوں نے کہا نا کتنی قسمیں تھے، تو ہم نے پڑھا ہے 3 قسمیں ہیں. اسم، فعل، حرف ہو گیا. ہر ایک قسم کی تعریف کریں اور مثال دیں. اب آپ اسم کی تعریف کریں. اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور جیسے رجل، ہوا، انا، اور اس میں کوئی زمانہ موجود نہ ہو. صحیح ہے. اور فعل؟ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور سر کوئی اس میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. زمانہ لازمی. یذهب. اور حرف؟ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو، جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ نہ آئے. صحیح. فی، من، یہ بس، لیکن یہ ذہن میں رکھیں آپ جو بتا رہی ہیں نا، یہ دیکھے بغیر بتانا ہے آپ نے. جواب دینا ہے تو پھر اصل کامیابی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھ کے بتاتے رہیں گے تو وہ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو یہ اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ کتنا آپ لوگوں کو یاد ہے. اگر دیکھ کے جواب دیتے رہیں گے تو ہمیشہ محتاج رہیں گے، ہے نا، اور ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہ رٹ کر یاد کرنا ہوتا ہے. اس میں پھر ہم جب بڑھیں گے آگے تو بہت اچھے طریقے سے، جب قرآن شریف میں ہم لے کے جائیں گے آپ کو اور پھر احادیث طیبہ پڑھیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں. تو یہ بنیاد بن رہی ہے ابھی آپ کی فاؤنڈیشن. تو جو جیسی محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اب آپ کے سامنے ہی ہے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ نے صحیح مثالیں دی ہیں. بہرحال اسم اور فعل میں بڑا فرق کیا کامران میں؟ تیسرا سوال. اور فعل میں بڑا فرق یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان اسم اور فعل میں زمانے کا فرق ہے. اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، یہ دونوں اپنے معنی کو دلالت کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے، فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اور اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا. یہ فرق ہے بڑا. اچھا، زمانے کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ ماضی، حال اور مستقبل ہو گیا. اچھا، الفاظ ذیل میں نیچے دیے ہوئے الفاظ میں اسم فعل حرف کی تمیز کریں. چلیں ہمیں بتائیں. اب میں پوچھتا جاتا ہوں جو ہمارے ساتھ ایک اور طالبہ ہیں، سعدیہ نور، آپ بتائیے ہوا جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ ہوا کیا ہے؟ سوری سر، میں نے مائک میوٹ نہیں کیا ہوا تھا. سر ہوا جو ہے وہ اسم ہے. اسم ہے، اور اسم کی پھر 2 قسمیں تھی، نکرہ اور معرفہ، کامن ناؤن، پراپر ناؤن. تو یہ کو کیا ہے، کون سی قسم میں سے؟ معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے. ہاں، اور ہوا کا مطلب کیا ہے؟ اور ہوا جو ہے مطلب پروناؤن، اس میں ضمیر ہے. ہاں، اور اس کا اگر ہم ٹرانسلیشن کریں تو کیا کہیں گے؟ ہوا کا کیا مطلب ہے؟ ہوا وہ ایک مرد، یعنی فور میل، ٹھیک ہے نا، ایک سنگولر میل کے لیے یوز ہوتا ہے، تھرڈ پرسن کے لیے. ہوا وہ ایک مرد. آپ بتائیں کاشف کہ من کیا ہے کلمے کی اقسام میں؟ حرف ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سے. من سے ہوتا ہے. من کا معنی سے ہے نا، سے. اچھا، اب جو ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ، ایک منٹ میں دیکھ لوں ذرا، ثنا کاشف یہ موجود ہے. ہاں بھائی آپ بتائیے ذرا، ضربا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، اور اس کے کیا میننگ ہے بتا سکتی ہیں آپ؟ ضربا اسم ہے اور وہ فعل ہے، اور اس کا مطلب مارا، مارنا. اس کا مطلب ہے اس نے مارا، یعنی یہ پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے نا. ضربا بالکل صحیح کا فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے، فعل ہے. فعل کا ہے نا آپ نے؟ جی فعل کا ہے. فعل ہے، بالکل صحیح بتایا. اچھا، اب جو ہے وہ دوسری طالبہ ہیں عظما، آپ بتائیے یذهبو یہ پڑھیں اور اس کا میننگ بتائیں، اور بتائیں اسم میں فعل ہے، حرف ہے؟ سر یذهب بھی فعل ہے. فعل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یذهب یذهبو کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہیں چاہیے. وہ گیا نہیں، وہ گیا نہیں. دیکھیں ضربت کا تو معنی تھا اس نے مارا، یہ پاس میں چلا گیا. یذهبو جو ہے نا یہ پریزنٹ یا فیوچر کے معنی دے گا، ٹھیک ہے نا. وہ جاتا ہے یا جائے گا،
क्या तर्जुमा है इसका? यज़हबू का क्या माना है? वो जाता है या जाएगा। और इसका ये भी ट्रांसलेशन हो सकता है कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, वो जा रहा है, यज़हबू, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, तो ये फेल हो गया। बलदुन, सादिया नूर, बलदुन, इसके मीनिंग को लिखे में शहर या मुल्क को भी क्या देते हैं बलद, ये लोग मुल्क या शहर दोनों के लिए आता है। और मदीनतुन खास शहर के लिए आता है अरबी में, मदीना का वर्ड शहर के लिए, बलद माना मुल्क या शहर कोई भी हो सकता है। अच्छा, ये इसम है, फेल है या हर्फ है? सर ये इसम है। इसम है, क्योंकि इसके मीनिंग ही सिटी, शहर के आ रहे हैं, सही ना, नाउन जी, है ये। जी। अच्छा, इसके अलावा याद रखें हमेशा कि इसम के ऊपर ही तनवीन आती है, तनवीन इसम की निशानी है। फेल अच्छा। पर या हर्फ पे कभी भी दो जबर दो जेर दो पेश इस तरह तनवीन नहीं आएगी। किसी भी लफ्ज पर दो जबर दो जेर या दो पेश आने, इसका मतलब वो इसम। अच्छा, अब आगे चलिए जरा, अगला अल फरस लिखा हुआ, कामरान भाई आप बता दें ये क्या है? क्या पहले तो इब्तिदा स्टार्टिंग से चले ना, इसम है, फेल है या हर्फ है, ये बात इसम है। अब कौन सी किस्म है इसम की? इसम की अल फर्स में ये माफूल बिल लाम है, अल लगाया गया। मैं स्टार्टिंग मैंने क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप। इसम की कौन सी किस्म है? इसम की दो किस्में, मारफा, यूं चले। अब मारफा की कौन सी किस्म है? मुअर्रफ बिल्लाम, मारफ नहीं, मुअर्रफ बिल्लाम। क्या? हाँ, अल वाला, यानी ये इसमें मारफा की किस्म मुअर्रफ बिल्लाम है। अल फरसु, क्या मतलब हो गया इसका? अल फरसु घोड़ा, घोड़ा यानी मखसूस घोड़ा, खास घोड़ा। अच्छा, इला, इला काशिफ आप बता दें जरा, इला क्या है और इसके मीनिंग क्या है? किसी की तरफ जाना, फेल। हाँ, किसी, यानी जाना नहीं बोले ना, जाने का तो कोई ताल्लुक, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, सही है ना, किसी की तरफ, ठीक है ना। इसके दो माने, या तो तरफ है या तक है, या फिर अंटिल कहते हैं। हाँ, इला, इला। तो आपने क्या कहा, ये क्या है? अच्छा, इन्होंने क्या फेल कह रहे हैं आप इसको? माना नहीं पूरे हो रहे हैं, देखा इन्होंने बता दिया। ये मैं इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये जितना हमने पढ़ा है ना आज, उसका ये रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। अच्छा, मैंने तवज्जो नहीं की थी कि ये फेल का है, आपने हर्फ है ये, तो ये ध्यान में रखें, इला जो है वो हर्फ है। अच्छा, अब जो है वो सना काशिफ आप बताइए, समउन, समउन के क्या माना लिखे हुए हैं ये बताएं, और फिर आप ये बताएं कि इसम में फेल है या हर्फ है? ये वो है, फेल है। क्या सना काशिफ ने सही बताया है कि समउन फेल है? नहीं सर, इसके ऊपर दो दो तनवीन पेश है। आ रहे हैं, तनवीन आ रही है। सबसे पहले देखिए मैंने बताया दूसरे स्टूडेंट ने कि इस पर तनवीन आ रही है तो ये तो फेल नहीं होगा। अच्छा, अब आप चलें, ये तो आपने एक टेक्निकल, एक आपने वो साइंस पकड़कर जो ना, साइन देखकर एक निशानी देख के आपने बता दिया, लेकिन समउन क्यों फेल नहीं है आप ये भी बताएं। अब आप नहीं पता सर। नहीं पता, कोई बात नहीं। किसको? अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है इनमें से किसी को पता है तो वो बता दें, नहीं तो फिर यहाँ जो हमारे साथ ऑन साइट स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछता हूँ। हाँ भाई, नहीं पता ऑनलाइन में से किसी को भी? चले भाई, अहमद बेटा, समउन बोल लिया ना, ये समय फेल है, हर्फ है। क्यों इस समय बेटा? अपने माना खुद दे रहा है तो वो तो फेल भी देता है, लेकिन वो फेल किसी के मिलाया, किसी के मिलाया बगैर नहीं होता ना। वो तो हर्फ होता है भाई। इससे फेल इसलिए नहीं, क्योंकि एक तनवीन तो अभी बता दिया ना, देखिए तनवीन आ रही है तो ये तो आपने पकड़ लिया, लेकिन इसके इस कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, लॉजिक क्या है इसकी? समउन क्यों इसम हम इसको कह रहे हैं, यानी जो आप लोग कह रहे हैं कि इसम है तो क्यों है? काशिफ भाई आप बता दें। चले, इससे जमाने का नहीं पता लग रहा, ये जवाब है मेन बेटा। समउन जब हमने कहा तो हमने कहा सुनना, तो अरबिक के अंदर अभी हमने पढ़ा इसम और फेल में बड़ा फर्क ये है कि फेल उस वक्त अरबिक में कहेंगे जब जमाना पाया जा रहा होगा, ठीक है ना, या तो पास्ट टेंस होगा, प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा। जब हम कहते हैं सुनना, ठीक है ना, लिसनिंग, सुनना, तो इसके अंदर ये अरबिक ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाउन काउंट होगा, इसम शुमार होगा। अगर इस सुनना को, क्योंकि इसके अंदर जमाना नहीं है, जब हम कहते हैं सुनना तो कोई भी जमाना नहीं पाया जा रहा, जमाना जब तक नहीं पाया जाएगा भले काम पाया जा रहा हो वो इसम ही काउंट होगा अरबिक। अगर ये यूं होता समिया, यानी उसने सुना था, उसने सुना, या वो सुन रहा है या वो सुनेगा, अब ये फेल में चला जाएगा। लेकिन ये जो वर्ड है समउन, सुनना, ये इसम ही में काउंट होगा क्योंकि इसमें जमाना नहीं पाया जा रहा। क्या जवाब है? इसमें जमाना नहीं पाया। काशिफ ने सही जवाब दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए। इसमें मारिफा और नकीरा की तारीफ करें और मिसाल दें। बताइए कामरान साहब, आप बता दें। इसमें मारिफा खास इसम, जैसे अहमद, अहमद अहमद हो गया, अहमद नहीं बोले, अहमद, अरबी में क्या? अहमद, राइट हो गया,
ज़ैद हो गया। इसी तरह इसमें नकरा जो है वो आम चीज़ों के ऊपर बोला जाता है, जैसे कि रजुलन कोई भी मर्द, और जैसे फरसन कोई भी घोड़ा। अच्छा, अब और मिसाल भी आपने दे दी, माशाल्लाह कर लिया, सही है। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल रकम 7, सही है ना, 7वां सवाल। तो इसमें मार्फा कितनी किस्म का होता है सोबान, क्या बता सकते हैं? मार्फा कितनी किस्म का होता है? 7 किस्म का होता है। गिनाना शुरू कर दें, कौन सी है उसके लफ्ज बोलें और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और एग्जांपल दे दें। इसमें अलम, क्या मतलब होता है अलम का? इसमें अलम, यहाँ इसका वो नहीं मतलब अलम, इसमें अलम से क्या मुराद है? मैंने आपको, देखें आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें हर चीज को एक्सप्लेन किया है हमने। अगर गौर से अगर आपने सुना होगा, उसको बार बार सुने रिकॉर्डिंग को, तो आपको फिर फायदा होगा। सही, इसमें अलम का क्या मतलब है? किसी का भी जाती नाम, खास नाम, इसमें अलम। अलम का माना झंडा भी होता है, अलम का माना निशानी भी होता है, अलम का माना पहाड़ भी होता है अरबी में, ठीक है ना। और जो है अलम का माना जैसे मशहूर शख्सियात होती हैं वो भी होता है, लेकिन यहाँ अलम का मतलब जाती नाम है, किसी का खास नाम है, ठीक है ना। तो इसमें अलम की मिसाल क्या होगी सोबान? मिसाल क्या अरबी में? कोई भी नाम होता है जैसे, हाँ, तो मिसाल क्या होगी, यानी कोई दे सकते हैं आप? ज़ैदुन, ज़ैदुन जैसे उन्होंने कहा, अभी मैंने आपको कहा सोबान, जो मैंने आपका नाम लिया बेटा सोबान, ये भी तो इसमें अलम है। अहमद, कामरान, जो भी दुनिया में खास नाम है, जाती लोगों के नाम है, वो सही में आगे ना बात, वो इसमें अलम है। शहरों के नाम है मक्का, किसी ने पाकिस्तान, पाकिस्तान मुल्कों के नाम है, लाहौर, इस्लामाबाद, खास नाम है ना ये, तो ये सब इसमें अलम में आएंगे। चल, अच्छा दूसरी किस्म इसमें अलम की कौन बताएगा क्या है? इसमें जमीर, जमीर क्या होती है? हामिदुन जमीर है हामिदुन तो इसमें अलम है। क्या होती है जमीर? इसमें जमीर क्या है भाई? इशारा हो, हाँ, जमीर की तारीफ क्या करेंगे? प्रोनाउन की, जो नाम की जगह इस्तेमाल हो। क्या है तारीफ? अहलन व सहलन या अनीस, माशाअल्लाह, मरहबन बिका या अनीस, अहलन व सहलन, तफद्दल। भाई हामिद गायब है आज, यानी हामिद अल-यौम गायब। वेनो, वेनो क्या होता है? वो कहाँ है? आम जबान में स्लैंग लैंग्वेज है, सही है ना। वेनो हामिद, हामिद कहाँ है? वो कहाँ है? वेनो, वेनो जो कहते हैं। आईना हुआ, खाली जबान में क्या कहेंगे? आईना हुआ, वो कहाँ है? वेन रो, कह रहे रू इला सफ, यानी कि वो जा रहा था, यानी क्लास की तरफ आ रही हूँ, कहना चाह रहे रू इला, समझ गया मैं, रू इला सफ, क्लास की तरफ ही जा रहा है, तो आया तो नहीं है मैंने। चले, अच्छा ये इसमें जमीर हो गया। इसमें जमीर की मिसाल क्या है? जो नाम की जगह इस्तेमाल हो। कामरान भाई आप मिसाल दें। नाम की जगह हुआ, क्या है? हुआ, वो एक मर्द, हिया वो एक मर्द, वो एक औरत, हिया। अंता, आप एक मर्द, अना मैं, नहनु हम, जैसे कि आप अरबिक के नोट्स की कन्वर्सेशन में हम पढ़ रहे हैं, ये जमीरों की हो गई मिसाल। देख लें जितना कुछ पढ़ाना है वो सारा रिवाइज हो रहा है आप लोगों का, सही है ना। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बस आपको आगे, थोड़ा सा आपको याद कितना है सब पता तो लगे। अच्छा, तीसरी किस्म इसमें मारिफा की क्या है? खास नाउन, प्रॉपर नाउन की जो थर्ड टाइप है वो क्या है? 7 टाइप्स पढ़ी है ना हमने इसकी। यहाँ इशारा, इसमें इशारा, आवाज आनी चाहिए स्टूडेंट की, शाबाश। इसमें इशारा, इसमें इशारा की मिसाल क्या है? इशारा वही है जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, ठीक है। हादा ये, जाका वो, जालिका वो, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद और आगे बढ़ते जाए, और क्या है भाई? क्या है इसमें? मौसूल। इसमें मौसूल की क्या मिसाल है अरबी में? नहीं, अल्लज़ी। और इसमें मौसूल का मतलब क्या होता है? अल्लज़ी। इसमें मौसूल का मतलब क्या है? वो इसम जिससे जुमले को मिलाया जाए, ज्वाइंट को कहते हैं, कंजंक्शन जो आपने कहा, सही है ना। ये इसमें मौसूल हो गया। तो इसकी मिसाल क्या है? अल्लज़ी या फिर अल्लती। क्या किसी स्टूडेंट को कोई मिसाल याद है जो मैंने बोर्ड पे लिखवाई थी? अल्लज़ी वाली एक जुमला लिखवाया था मैंने, सेंटेंस अल्लज़ी की। हाँ हाँ बोले बोले भाई, कौन स्टूडेंट बोल रही है? हाँ हाँ बोले बोले, क्या था? बोल दें मिसाल। जा हुआ सिद्दीक़ी। हाँ, जा और रजुल लदी हुआ सदीकी, ये हुई ना बात, देखा आपने। जा और रजुल
जा अर्रजुलु लदी, बोल रहे हैं आप लोग थोड़ा हुआ सदीकी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो रिकॉर्डिंग सारी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, वो देख सकते हैं, उसमें वो लिख के भी मैंने बताया। जा अर्रजुलु लदी हुआ सदीकी, जा रजुल का मतलब क्या, जा आया, अर्रजुल वो आदमी, अल्लदी जो के, हुआ सदीकी मेरा दोस्त है, वो आदमी आया जो मेरा दोस्त है। तो अल्लदी इस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है। अब इसके बाद एक और टाइप कौन सी है इसकी, इसमें मारिफा की है, वो इसम जो मुनादा हो। मुनादा का मतलब जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए, सही ना, मुनादा हो गया। अब इसकी मिसाल, या रजुल, या अल्लाह, या वलद, हाँ, या रजुल ए मर्द, या वलद ए लड़के, ए बच्चे, या तालिब ए स्टूडेंट, इस तरह, या बिन्त ए लड़की। तो ये भी खास हो जाता है या लगने के बाद। और क्या, कौन सी, नहीं इसके अलावा और क्या रह गई अभी किसमें, मुअर्रफ बिल लाम, जिसके ऊपर अल आ जाए वो भी इसमें मारिफा होता है, जैसे अर रजुलु, अल फरसु। और आगे चलें, अब एक और किस्म क्या है, वो इस्म जो मुदाफ हो, वो इस्म जो मुदाफ किसकी तरफ हो। ये भी तो एक वर्ड था ना एक, तो उसकी थोड़ी सी इस्म की तरफ। चले एक काम करते हैं ना, चले काशिफ भाई आप जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें क्या है सातवीं किस्म। मारफा बना दे, सोच कर बोलने हैं अल्फाज। सातवीं किस्म क्या है, अनीस आप बताएं। वो इस्म जो नकीरा का मुआरफा से ताल्लुक जोड़े। हाँ चले थोड़ा सा करीब पहुंच गया, और थोड़ा सा कोई और बोल के बताए। हाँ भाई अहमद आप बताएं। चले मुदाफ कर दे, ये बात हुई ना, अहमद ने सही बताया, शाबाश। वो इस्म जो नकेरा हो यानी कॉमन नाउन हो और उसको टच एक दे दिया जाए, उसका ताल्लुक जोड़ दिया जाए, एक रिलेशन कायम कर दिया जाए प्रॉपर नाउन के साथ, इसमें मार्फा के साथ। तो मुदाफ का मतलब होता है जिसका ताल्लुक जोड़ दिया जाए, जिसे दूसरे की जानिब निस्बत दे दी जाए, मंसूब कर दिया जाए। और उर्दू में उसके तर्जुमे में आम तौर पर का के की का तर्जुमा आ रहा है। जैसे हमने कहा था किताबु खालिदिन, बोले अगर किताब को अकेले देखें हम तो किताब तो नकीरा है, लेकिन हमने कहा किताबु खालिद, खालिद बुक, खालिद की किताब, तो ये हमने क्या किया, उसका एक यानी बुक का ताल्लुक किसके साथ जोड़ा, खालिद के साथ। और खालिद जो इसमें अलम है मार्फा की किस्म, तो ये किताब भी यहाँ पर खास हो गई, क्योंकि अब दुनिया की किसी भी किताब की बात नहीं हो रही, बल्कि खास बुक की बात हो रही है, और वो खालिद की किताब। तो किताब खास हो रही है, देखें ट्रांसलेशन से भी हमें पता लगता है। खालिद की किताब, किताबु खालिद, क्या कहा बेटा अहमद हमने, किताबु खालिद, खालिद की किताब। तो मार्फा की किसी भी किस्म की तरफ अगर मुदाफ होता है नकेरा, तो वो नकेरा कॉमन नाउन भी प्रॉपर नाउन हो जाता है, उसको कहते हैं मुदाफ। अब इसकी मिसाल क्या है, एक और, किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। अच्छा देखें एक और मैं आपको कहूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, हाँ सय्यारतु काशिफ, थोड़ी अपने पास से भी मिसालें बनाए ना भाई। सय्यारतु काशिफ क्या मतलब हो गया, काशिफ की गाड़ी, तो गाड़ी भी यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया। बहुत और मिसाल दी अनीस ने, सही है ना। इस तरह करके आप, इसी तरह कलमुत तालिब, अब मैं अल लगा कर कहूँ, यानी मेरे को कलमुत तालिब, अत तालिब कह दूं, तो अत तालिब मुअर्रफ बिल लाम है, अब कलम को मैंने उसकी तरफ निस्बत दे दी, ताल्लुक जोड़ दिया, जैसे उसका रिलेशन हुआ तो कलम भी मार्फा हो, अगर इस पर अल नहीं है, कलमुत तालिबी क्या कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं कहूं मिसाल के तौर पर कलमु हाज़ल वलद, इस लड़के का पेन, तो हादा इसमें इशारा है, तो मैंने कलम को हादा की तरफ जोड़ दिया, ठीक है ना, तो उसके साथ जोड़ दिया, तो फिर क्या हो गया, ये कलम भी मारिफा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो आसान लफ्जों में अगर इसको एक्सप्लेन या इसको कुछ एक जुमले में लिखना है सेंटेंस में, तो हम कहेंगे ऐसा नकेरा जो मारिफा की तरफ मुदाफ हो जाए, ऐसा नकेरा। जवालुल बिन्त, हाँ अब जैसे इन्होंने बहन ने मिसाल दी, जवालुल बिन्ती, लड़की का मोबाइल, ठीक है ना, जवालुल बिन्त, तो क्योंकि अल बिन्त मुअर्रफ बिल लाम है और जवाल उसकी तरफ मंसूब हो गया, मुदाफ हो गया। बस अब ये अरबी के टर्म में हम बात करते हैं ना, इसको मुदाफ कहते हैं, मुदाफ यानी मंसूब, जिसकी निस्बत कर दी जाए, तो मुदाफ हो गया, तो जवाल भी प्रॉपर नाउन हो गया, जवालुल बिन्ती या जवालुल बिन्त, लड़की का मोबाइल। तो लड़की का होगा तो उसको जवाली पढ़ेंगे या जवाली बोलेंगे, नहीं मोबाइल, देखें मोबाइल जो वर्ड है वो तो अपनी जगह है ना, और बिन्त वर्ड अपनी जगह है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं। सर एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, ये हम इस, हाँ जवाल भी मार्फा हो गया, ये बात है जी। अब आप क्या कह रही है, क्या अच्छा, सवाल कर रही है।
جی سر، میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ جو منادہ کی آپ نے بتائی یا اس کے علاوہ کیا مثال ہو سکتی ہے؟ جیسے ہم اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ موصول کو تو ہم جیسے اگر ہم کنجنکشن کہہ رہے ہیں تو اس کو کیا ہم انٹرجیکشن کہیں گے؟ کس او کو یا ہرا، کس کو کہتے ہیں؟ اس میں منادہ کو، ہاں یا او، جیسے ہم اگر اس کو انگلش میں آسانی سے سمجھنا چاہیں تو کیا کہیں گے اس کو؟ منادہ کو کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر جی. ہاں دیکھیں منادہ کے لیے اب میرے کو اس کی انگلش کی ٹرم تو باقاعدہ یاد نہیں ہے کیونکہ کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر عربک گرامر میں جو وہاں انگریزی کے اندر باقاعدہ اس کا الگ سے کوئی نام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے سر، تو لیکن ہم یا اس کے کے لیے علاوہ یہ کوئی اور کہیں گے مثال؟ یا یعنی ایسا ورڈ کہ جو یا کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو بس وہ منادہ ہے. جو بھی ورڈ یا اچھا کے بعد آئے گا ٹھیک ہے تو وہ جی، منادہ ہوگا. بس یہ آسان سا اس کو اس ٹھیک طرح ہے بنا لیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. ہاں صحیح نا، دا ورڈ فالوڈ بائی یا اس طرح کوئی بھی آپ ایسا ایک جملہ بنا لیں کیونکہ الگ سے کوئی ایک اس کا خاص نام ہو میرے نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے چل سر، ٹھیک. اچھا اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب ہم یہی سوال تھا یا اور بھی کوئی سوال ہے تو پوچھنے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں سر، بس یہی سوال تھا. اچھا اب اس کے بعد آگے بڑھیں ذرا، ہم آگے مزید بڑھ رہے ہیں اسی میں. ہاں 7 قسمیں ہو گئی نا. اب یہ ذیل کے اسموں میں معرفہ و نکرہ پہچانے. چلیں ایک ایک اسٹوڈنٹ پڑھتے جائیں. کاشف سے میں پڑھوا رہا ہوں، پہلے پڑھیں بھائی. پہلا لفظ معرفہ کون سا ہے اور نکرہ کون سا ہے؟ زیدن ہاں اسم علم، زیدن اسم علم، اسم علم. اسم علم تو پہلے یوں کہا کریں، دیکھیں اسم معرفہ اور اس کی جو قسم ہے، ٹائپ ہے، وہ اس میں اسم معرفہ اور اس کی قسم ہاں ہے اسم علم. اسم علم. چلیں اب آگے انیس صاحب پڑھتے جائیں. مکہ اس میں معرفہ صحیح ہے، اس میں معرفہ ہے کیونکہ خاص نام ہے، شہر کا نام ہے، سٹی نیم ہو گیا نا خاص. چلیں اگلا آپ پڑھیں. دیکھیں یہاں یہ انہوں نے جو بہن نے سوال کیا تھا نا، تو اس کو میں نے ابھی نکالا ہے. ٹھیک ہے نا، المانی ایک ڈکشنری ہے، اس کا نام ہے المانی. تو انہوں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر منادہ. منادہ کے لکھا ہوا ہے ان دا کیس آف واکیٹیو ناؤن، ان دا واکیٹیو کیس. تو واکیٹیو کہا جاتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک انگریزی ٹھیک ہے کی انہوں نے ٹرم لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ اس کو ٹرم یوز کرنا چاہتی ہیں تو اس کو آپ لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ ناؤن ان ٹھیک دا واکیٹیو کیس. انہوں نے بھی تو بنایا ہے اس کو، الگ سے کوئی ایک نام نہیں ہے اس کا. ہے. جی سر. صحیح ہے. تو یہ آپ کے لیے آپ کا انگریزی کا یہ جواب ہو گیا آپ کو. اس کے انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ اگر جیسے انگریزی والی بعض ایسے ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ کے، ان کے حساب سے ہر انسان کو اپنے اس کے حساب سے گرامر سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں. آج کل فوراً آ جاتی ہے ساری چیزیں. تو یہ ایک ورڈ ملا ہے واکیٹیو، یعنی اس طرح کیس. ناؤن ان دا کیا ہے؟ ناؤن ان واکیٹیو کیس. تو یہ مطلب اس طریقے سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ان دا واکیٹیو کیس، کہ یعنی اس ایک پکارے جانے والی حالت میں اسم. منادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اصل میں لفظی معنی دیکھ لیں آپ. منادہ کے اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس کو پکارا جائے. کیا ہے؟ جس کو پکارا جائے، ندا کی جائے. یہ ندا سے نکلا. ندا مطلب ہوتا ہے پکارنا، کسی کو کال کرنا. تو یہ ہو گیا واکیٹیو ناؤن ہو گیا. اب جو ہے وہ ہاں اچھا مکہ ہو گیا تھا. مکہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ اور اس کی قسم اس میں علم ہے. اب کامران بھائی آپ بتائیں. بلدن معرفہ ہے وہ اس میں نکرہ ہے. پہلے تو ایک فیصلہ کر لیں، معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کون بھائی ان کے ساتھ ہے؟ نکرہ ہے یہ بلدن؟ احمد آپ بتائیں. نکرہ ہے. اچھا جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ بلدن کیا ہے؟ نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ ہے. صحیح ہے، یہی جواب ہے. کیونکہ بلد کا معنی کیا؟ کوئی بھی شہر. ٹھیک ہے نا، بلدن کوئی بھی ایک شہر. اب اس کے بعد آگے آ جائیں. رجل کیا ہے؟ رجل اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں نکرہ یا معرفہ؟ نکیرہ. اچھا اس کے بعد ہے صوبان سے سوال ہے. اب طیب صوبان بتائیں نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ کیوں معرفہ ہے؟ الف لام آ رہا ہے، معرب باللام ہے. اس میں معرفہ کی قسم معرب باللام ہے. نحنو، نحنو کا کیا مطلب ہے؟ ہم. کیا مطلب ہے؟ ہم. اچھا اب مجھے ذرا بتائیں نحنو کا معنی ہے ہم. کاشف یہ معرفہ ہے نکرہ؟ اچھا معرفہ ہے، اس کا مطلب اسم ہے، فعل یا حرف تو نہیں ہے یہ؟ نہیں اسم ہے، اس میں معرفہ ہے. اور ہاں اسم کی کون سی قسم ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے. نہیں اس میں بولنے دیں ابھی ان کو، جو ذہن میں آ رہا ہے بولنے دیں، اسی سے تو کانسیپٹ کلیئر ہوں گے نا. ہاں بھائی بولیں. کاشف بھائی آپ کیا ہے یہ بتائیں. نحنو اشارہ نہیں ہے، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں اس کو کہ یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ معرفہ کی قسم ہے، ایسے بولتے ہیں ہم. چلیں اب آن لائن اسٹوڈنٹس کی طرف میں آتا ہوں. اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا آنسر. ہاں کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے اور اس میں معرفہ کی قسم ہے، یہ اس میں ضمیر.
हाँ ये है जवाब सही, ये इसमें मार्फा की किस्म, इसमें जमीर है, ये प्रोनाउन है ना भाई, वी आई वी, सही ना, ही शी इट दे, ये सारी प्रोनाउंस में है ना, तो इसी तरह ये भी इसके अंदर ही नहनु जो है क्या है, हम, सही ना, तो ये प्रोनाउन है, इसमें जमीर है, इसमें इशारा देखें कब होगा, जब हादा जालिका इस तरीके के अल्फाज, ये इसमें जमीर है और मार्फा है और समय, शाबाश। अब आगे मैं आ रहा हूँ कामरान भाई की तरफ, अल-फरस, ये क्या है, हाँ और ये अल लगा हुआ है मोरब बिल्लाह में। अच्छा चले भाई, अब मैं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट से ये 2-3 लफ्ज़ ना पूछूं। उज़मा बहन आप बताइए, हसनुन ये क्या है? सर मारफा। अच्छा इसका तर्जुमा बता देंगी? नहीं, ये हसनुन इसका हो जाएगा मेरे ख्याल में खूबसूरत। हाँ, हसन का माना खूबसूरत भी होता है या फिर अच्छा भी होता है, गुड, ठीक है ना, सिफत है। अच्छा तो ये क्या सही कह रही हैं, बताएं उज़मा आप, ये कह रही हैं क्या है, ये इसमें सिफत का है और इसमें नकीरा का है, और इसमें सिफत है। हाँ सर ये शायद कहा है। सही बोल रही है। सही कह रही है, इसका मतलब ये मार्फा नहीं है और ये इसमें नकेरा है और इसमें सिफत है। जानबूझ के मैं आप लोगों से सवाल कर रहा होता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप जो है ना, हाँ जी सर ये इसमें अलनी नाम हसन नाम भी देखें, कह सकते हैं हम, हाँ अगर जैसे आप देखें, इन्होंने एक स्टूडेंट ने कहा कि हसन अगर नाम हो, तो अगर किसी के नाम के तौर पर लेते हुए आप कह रहे हैं, ठीक है ना, फिर वो मार्फा में की कैटेगरी में जाएगा। और अगर हमने हसनुन का माना अच्छा, या एक एट्रीब्यूट लिया हमने, कोई भी क्वालिटी के तौर पर उसको लिया, हसन यानी गुड थिंग, अच्छी चीज, ठीक है ना, या फिर जो है वो ब्यूटीफुल, खूबसूरत, दोनों माना होते हैं। तो अगर हमने उसको सिफत के तौर पर लिया तो फिर क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, इसमें नकिरा कहलाएगा। और इसमें नकिरा की 2 किस्में पढ़ी थी हमने, एक इसमें ज़ात था और एक इसमें सिफत था। तो ये सिफत है, एट्रीब्यूट की कैटेगरी में आएगा और ये नकिरा काउंट होगा। तो दोनों पहलू हैं इसके, अगर आप नाम के तौर पर ले रहे तो मार्फा है, तो इसमें अलम में चला जाएगा। और अगर एक आपने खूबी या खामी कोई बताई है, कोई क्वालिटी एट्रीब्यूट आप उसको बता दें, ठीक है ना, तो फिर ये उसमें जाएगा, इसमें सिफत नकिरा होगा। शाबाश, सही जवाब दिया इन्होंने। अच्छा अब जो है वो दूसरी तालिबा जो हमारे साथ है, सना काशिफ, आप बताइए कबीहुन। सर मुझे नमाज का ब्रेक चाहिए, मगरिब का। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल नमाज पढ़िए, कोई समस्या नहीं है, आपके यहाँ नमाज का वक्त हो गया, आप नमाज पढ़ लें, फिर आप शामिल हो जाइएगा, जो क्लास रह जाए वो रिकॉर्डिंग में है। जी हाँ भाई, सना काशिफ आप बताएं, कबीहुन। कबीहुन इसमें नकरा हुआ और इसमें सिफत। हाँ इसमें नकिरा और इसमें सिफत है ये, क्योंकि कबीह का मतलब क्या, ये भी बता दें जरा आप कबीह का मतलब बताएं, बदसूरत या बुरा, ठीक है ना, तो ये हो गया कबीह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब सोबान से अब दोबारा सवाल है, हादा सोबान, हादा क्या है, नकिरा है ना, पक्की बात है सर इसमें क्या नहीं है, सोच के बताओ है क्या है सोबान भाई, एवं नहीं बताना क्या है, नकिरा नहीं है तो फिर क्या है, फौरन बताता है ये बच्चा इसमें मारिफा की किस्म, इसमें इशारा है और ये इसमें मारिफा है बेटा, अभी तो पढ़ा है हमने, सही ना। चले अल्हम्दुलिल्लाह ताला, इस तरह आज हमारी ये अल्फाज वाली एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। अब पॉइंट नंबर 9 और ये जो है ना सवाल नंबर, हाँ चले मैं नवा सवाल कर लेता हूँ, आज मैं आपको ये सवालात ही पूरे सॉल्व करा दूं ना, ठीक है ना। चलें, जब ये 10-11 मिनट हैं अभी, इसके 7-8 मिनट बल्कि बाकी है, तो इसको आप कर लें। पॉइंट नंबर 9, मज़कूरा अल्फाज में कौन कौन सी किस्म के मार्फा और नकिरा, ये तो हमने कर लिया, इस सवाल को पढ़ तो लिया कि ऊपर मज़कूरा मतलब ऊपर वाले जो अल्फाज हैं, पीछे वाले अल्फाज में कौन से मार्फा है कौन से नकिरा, सब कर लिया, यही मैंने पूछा है, तो ये सवाल हल हो चुका है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10, अल के हमजा को क्या कहते हैं, जो हमारे साथ चले, अच्छा बता दिया सबने, क्या कहते हैं बता दें, हमजतुल वसल कहते हैं। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11, हुआ को अल वलद इस्मुन और इब्नुन के साथ मिला के पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे हुआ को, क्या हम हुआ को हुआ अल वलद पढ़ेंगे या कैसे पढ़ेंगे, बोलने सब हुवल वलद, इसका मतलब हो जाएगा वो लड़का, ठीक है ना, या वो लड़का है, हुवल वलदू बोले, हुवल वलदू। इसके बाद आगे चलते जाएं, हुवस्मुन, इस तरह पढ़ेंगे, यानी जब आप जवाब लिखना चाहेंगे, अपनी कॉपी बनाते हैं तो लिख देंगे कि यहाँ पर अल के हमजा को नहीं पढ़ेंगे, हाँ इसका विसाल हो जाएगा, हुवस्मुन, इसका तर्जुमा हो जाएगा वो नाम है, क्या हो जाएगा वो नाम है। उसके बाद आगे चलें, अच्छा हुआ इब्नु ने तो कैसे पढ़ेंगे,
सब बोल लेना, वबनुन, हुआ इब्नुन नहीं पढ़ना, ये सारे हमजा वसल हैं, इनको गिरा देंगे। वबनुन, वाव को लाम में, सीन में या बे में मिला देंगे। वबनुन, वो लड़का है, वो बेटा है। अच्छा सवाल, अब ये 12वां सवाल हम पढ़ दें। चलें इसको पढ़ें। इस्मुन और इब्नुन पर अल दाखिल हो तो किस तरह पढ़ेंगे? इस्मुन और इब्नुन पर अल अगर डाले तो अल इस्मुन, हाँ भाई, अल इस्मु पढ़ेंगे या कैसे पढ़ेंगे? ये तो गलती है, अल इस्मु थोड़ी पढ़ेंगे। इस्मुन पर अगर अल लगाएंगे तो अल इस्मु, लाम को जेर दे देंगे। शाबाश सोबान, क्या पढ़ेंगे हम? सब बोले अल इस्मु, लिखेंगे अल इस्मु ही, लेकिन पढ़ेंगे अल इस्मु, लाम को जेर दे देंगे, सीन में मिला देंगे। इसी तरह इब्नुन को जो है वो जो हमारे साथ है उस्मा, आप बताइए इब्नुन पर अल लगा के पढ़ें। अलिब्नु, अलिब्नु, शाबाश। और अल आ रहा है तो 2 पेज भी नहीं पढ़ना, अलिब्नुन नहीं पढ़ेंगे हम, सही पढ़ा इन्होंने, अलिब्नु। हुरूफ शम्सी आपने कहा, इसके अंदर ये अगर 14 हर्फ आ जाते हैं तो अल की जगह पर वो मिला दिया जाएगा, जिस तरह तमरुन को अस। अब इसमें आप कह रहे हैं हमजा है, इसमें विसाल हो गया, हमजा का अल के साथ विसाल हो गया, तो अल इस्मुन हमने इस वजह से पढ़ा है, लेकिन इसमें हुरूफ शम्सिया का दारोमदार नहीं है, इसमें हुरूफ शम्सिया नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना, जब तो कहाँ लग रहा है? देखें हरफे शम्सी, आगे ये आ रहा है सवाल, हरफे शम्सी का सवाल आ रहा है। जब आपने इस्मुन पे अल लगाया, ठीक है ना, अल लगा दिया और इसम को गिरा दिया, तो क्या बन गया? अच्छा, अब इस्मुन के पहले वाला जो लाम है वो साकिन था, ठीक है ना। अब अगर हम अल इस्मु नहीं पढ़ते हैं तो अब क्या बचेगा? अल मु, अल स मु, तो ये दोनों लफ्ज साकिन हो जाएंगे। और अरबी में इस तरह नहीं होता कि एक साथ 2 साकिन जमा हो जाए, तो उसको फिर जेर देकर लाम को सीन में मिला देंगे, अलिस्मु, इस तरह पढ़े, ठीक है ना। अभी हरफे शम्सी वाला कायदे का सवाल आ गया। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 13, हाँ भाई, सलासत अशर, इसको पढ़ें। सवाल रकम सलासत अशर। नून तनवीन किसे कहते हैं? कौन बताएगा नून तनवीन क्या होता है भाई? हाँ, 2 जबर 2 जेर और 2 पेश के की अदायगी में जो नून की आवाज आती है, नाक में जाती है, तो उसको नून तनवीन कहते हैं। जैसे बन, बिन, बुन, नून की आवाज आ रही है ना, नाक में जा रही है ना, इसको कहते हैं नून तनवीन। अच्छा, इसके बाद जो है ये नून तनवीन की तारीफ हो गई कि तनवीन की अदायगी में 2 जबर 2 जेर 2 पेश के तलफ्फुज़ में जो नून की आवाज आती है उसको नून तनवीन कहते हैं। अब आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 14, तनवीन वाला लफ्ज मुअर्रब बिल लाम के साथ किस तरह मिलाया जाएगा? तनवीन वाले लफ्ज को मुअर्रब बिल लाम के साथ कैसे मिलाएंगे? जैसे लिखा हुआ ज़ैदुन और अल आलिमु, तो क्या पढ़ेंगे? शाबाश, एक पेश कर देंगे और छोटी नून बढ़ा देंगे। कैसे पढ़ेंगे? ज़ैदुनिल आलिमु, बोले। इसी तरह जो है ज़ैदुनिल आलिमु कहें, या फिर यूं कहें खालिदुनित तालिबु, क्या? यानी स्टूडेंट खालिद, तो खालिदुनित तालिबु, इस तरीके से करके पढ़ेंगे। अच्छा, अब आखिरी सवाल है 15वां, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह ताला सॉल्व हो जाएगी। अब आप बताएं हुरूफ कमरिया कौन से हैं, हुरूफ शम्सिया कौन कौन से हैं? किसको याद है हुरूफ शम्सिया? उसके अलावा जो है वो हुरूफ कमरिया, कौन सुना सकता है? अहमद, हाँ सुनाए। जी जी, दोबारा बोले आप क्या? हाँ हाँ, ता, दाल, दाल, हाँ, आगे लाम, लाम नून, ठीक है ना। ये 14 अल्फाज है, देखिए इस तरह याद होनी चाहिए सबको ना, कि ये हुरूफ शम्सिया, इनके अलावा जितने भी है वो क्या है? हुरूफ कमरिया। जब हरफ शम्सी आता है सुने शुरू में और अल लग रहा होगा तो अल की आवाज नहीं आएगी, बल्कि हरफ शम्सी को मिला देंगे। जैसे अस्समारू, हरफ शम्सी है ना सा। इसी तरह अत्तमरू, तमर माना खजूर, समर माना फल, अस्समारू। इसी तरह अत्तमरू, अश्शम्सु। और इसकी जगह अगर हमें कहना है मिसाल के तौर पर अपना हिर्रुन, हिर्रुन यानी बिल्ला, अल हिर्रु, क्या होगा? अल हिर्रु, तो लाम साइलेंट नहीं होगा क्योंकि हरफ कमरी। हरफ शम्सी होगा तो फिर लाम की आवाज नहीं आएगी, बल्कि डायरेक्ट उसकी आवाज, अश्शम्सु। इसी तरह अल कमरु, अल वलदु, ये हरफ कमरी। तो हरफ कमरी जब होगा और अल लग रहा होगा तो ये सारा हमने समझा हुआ, पीछे रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। तो ये हरफ शम्सी और कमरी का कायदा है। बस यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को रोक कर दोबारा कॉल पे ले रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट इसी तरह शामिल हो सकते हैं।